हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Understanding Indian history. There is a most important chapter, understanding of Indian history, and there is a first point, source for the reconstructing ancient Indian history. There is a most important here, source. The source for reconstructing ancient Indian history. There is a most important point here. A historian need to the source material to reconstruct their past, but source are thus originals do not reveal to the past. They need interpretations, and the historians make them speak. In fact, the historians is expected to track the source and read text, flow to the clue, ask relevant and question across the check the evidence to offer to meaningful explanation. For example, in 1926, occurs Mawsons is noticed that the high walls and the tower on the old settlement in Harappa village of the western Punjab, now in Pakistan, and five decided to the later Sir Alexander consumed is a collected some seals from the site, but it is a to a archaeologist is a John Marshall's another 50 years to the identity the oldest civilization in the Indian regions. We shall offer there is the another example regarding to the historians is a task to close the check is a corroborate or different types of evidence. Now here in the source of pertaining to the King Harsha is the 7th century AD, do we find a mention of the defeat at the hand of the Chanakya rule of the Placations and the two. But their inscription of the Placations to his claims a victory over Harsha, and in this case it is a obvious that is a Harsa is the biographer is a Bana Bhatt who is wrote to the Hars Charitra, and related to that did not be mentioned their defeat of the Perons. And the related to the meaning of the Itihasa is their Itihas is this is was and is translated in a history. Their Itihasa is this is was there translated by a history, and there was a time when only written to record were to acknowledge and the authentic source of history. The written materials could be verified, cited, and the cross-checked, and oral evidence is a method, and the folk is a song was never considered as a valid source. Earlier historians used the methods, the fictions, and their oral traditional in the limited and the way on the account of their lack of the authorities and verifiability. The very fiability, but the today this is a unconventionally source are began used to the eventually there is a traditional and cultural traits should be a studies in their light of other historical fact. There is a most important here itihasa. For example, the Mahabharata is a story of conflict between two sets of the warring cousins. The warring cousins here one not be sure whether there is a real war and the narrated in the epic. And some historians believe that is a war did happen when the other wait for the corroborative evidence for the event. The original story was probably to composed by the Bharas, known as the Sutas, who is generally is accompanying the Kasustria is a warrior to be a battlefield and recited a poem in the praise of the victories and other achievement of their heroes. This is a composition is where circulated to orally and is a preserved at a part of a human memory. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास को समझना, देखिए भारत को इतिहास को समझना है तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि भारत की इतिहास कितनी पुरानी है
और ये सब बातें जो है हमें कुछ ग्रंथों से ही पता लगेगा कि भारत की क्या विशेषताएं थी। कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है पुनर्निर्माण के स्रोत के रूप में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की पुण्य संरचना के लिए जो है प्रयुक्त स्रोत सामग्री की आवश्यकता होती थी, लेकिन स्वयं स्रोत जो है अतीत को हमारे सामने नहीं लाते, उन्हें व्याख्या की जरूरत होती है। यानी देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो है एकाएक अपने आप प्रकट नहीं होती है, इसके लिए व्याख्या की ज़रूरत होती है, उस पर समझ की ज़रूरत होती है और उस पर जो है एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इतिहासकार उन सूत्रों को जो है वाणी देते हैं और इतिहासकार बताते हैं कि भाई ये क्या था और इसका क्या वैल्यू था उस समय में। तो ये जो है इतिहास का जो है समझने की ज़रूरत है हमें। वास्तव में इतिहासकार से जो है अपेक्षा की जाती है कि सार्थक रूप से समझने के लिए वह स्रोतों को ढूंढे, यानी कोई भी चीज़ का वो अगर बात बता रहे हैं तो उसके समक्ष उनका कोई प्रमाण जरूर होना चाहिए। पाठकों को पढ़े और सुरागों के पीछे जो है पीछा करे, क्योंकि इस सुराग से क्या मिल सकता है। उपयुक्त प्रश्न उठाए और जो है प्रमाणों को जो है सत्यता की जांच करे कि जो प्रमाण हमें मिला है उसकी कहाँ तक जो है सच्चाई आती है। उदाहरण के लिए अगर देखें सर 1826 में चार्ल्स मैनसन ने जो है पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा गांव में जो एक अब जो है पाकिस्तान में आ रहा है, किसी पुरानी बस्ती की ऊंची ऊंची दीवारों और मीनारों देखी और इसके 5 दशक बाद जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसी स्थान की कुछ सील मोहरें एकत्र भी की, लेकिन इसके भी 50 वर्ष बाद जाकर पुरातात्विक जॉन मार्शल ने वहाँ सिंधु क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता की पहचान की। अब देखिए ये कई मानने में जो है इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ जाता है कि 1826 में जो है चार्ल्स मैनसन ने पंजाब के हड़प्पा गांव में जो है पाकिस्तान में है वहाँ ऊंची ऊंची दीवारों देखी और मीनारें देखी, ठीक है। उसके बाद जो है अलेक्जेंडर डेनिस ने उसी स्थान में कुछ सील मोहरें एकत्र की है और उसके बाद आगे चल के जब जॉन मार्शल ने वहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तो ये सारी बातें एक दूसरे से काफ़ी जो है मिलती जुलती है। देखिए एक ने दीवार देखा, ठीक है, यानी उस समय दीवार थी जब ये देखा गया, यानी चार्ल्स मैनसन ने जब वहाँ पर के दृश्य को देखा तो वहाँ दीवार थी, ठीक है, और मीनार थे। लेकिन जब ये कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर संधिम वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ उनको जो है मोहरे मिले, ठीक है। लेकिन जॉन मार्शल के जब इसकी खोज हुई तो उन्होंने जो है पूरी तरह से प्राचीनतम सभ्यता की पहचान कर ली और उन्होंने इसका नाम जो दिया हड़प्पा सभ्यता दिया। इतिहासकार तरह तरह के साक्ष्यों की पुष्टि कैसे करते हैं उसका एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि राजा हर्षवर्धन। देखिए राजा हर्षवर्धन इस जो है ईशा की जो है 7वीं शताब्दी से जुड़े किसी स्रोत से हमें चालुक्य जो है पुलकेशन नृत्य के हाथों उनकी पराजय का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी देखा जाए जो हर्षवर्धन था, राजा हर्षवर्धन, उसमें यह कहा गया था कि चालुक्य पुलकेशन नृत्य के हाथों उनकी पराजय जो है हुई थी, लेकिन इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लेकिन राजा पुलकेशन नृत्य के एक शिलालेखों में उसके द्वारा हराने का दावा भी किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी तथ्य है कि एक जगह, हाँ देखिए, एक जगह हारने का बात नहीं किया गया है, दूसरी जगह हराने की बात की गई है। तो ये थोड़ा सा तथ्य जो है कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है। इसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष की जो है जीवनी, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट ने जानबूझ के अपने आश्रयदाता की पराजय का उल्लेख नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों जब इतिहास लिखी जाती है। मान लीजिए किसी को जो है आश्रय के रूप में, आश्रयदाता के रूप में जो है कोई राजा ने किसी को रखा है तो वो उसकी बुराइयां नहीं करता है, जिसके वजह से जो है हमें सही साक्ष्य प्रमाण जो है नहीं मिल पाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे समक्ष आया है वो हर्षवर्धन की चरित्र थी, जिसको जो है बाणभट्ट ने लिखा था। और बाणभट्ट आपको पता ही है कि हर्षवर्धन के लेखक था और वो जो है आश्रयदाता के रूप में रहता था। तो उसने जो है ये बात को जो है पुलकेशन के नृत्य के साथ जो युद्ध हुई उसमें पराजय की बातें उसने बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया। तो यही इतिहास जो है बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा बना देते हैं। यहाँ पर हम जो है इतिहास के बारे में समझ रहे हैं तो इतिहासक शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा हुआ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री किया जाता है। एक समय था जब लिखित अभिलेखों को इतिहास का प्रमाणिक स्रोत माना जाता था और लिखित सामग्री की सत्यता जांची जा सकती थी, उसे उद्धव तक किया जा सकता था और अन्य स्रोतों से भी उसकी जो है पुष्टि भी की जा सकती थी। मृतक लोकगीत आदि जो है मौखिक साक्ष्यों का सही स्रोत माना ही नहीं जाता था। आपको पता है पुराने समय में अगर हम किसी भी जो है चरित्र की बात करें तो वहाँ पर जो है पहले मौखिक रूप में हुआ करता था, लोग गाया करते थे, ठीक है। बाद में जाके जो है
इसको लिखित रूप दिया, लेकिन जब कहते हैं मौखिक रूपों को जो है कोई भी प्रमाण देने को तैयार नहीं होता था। आरंभिक इतिहासकार मृतकों की जो कथाएं और मौखिक जो है परंपराओं का सहारा नाम मात्र के ही लेते थे, क्योंकि ना तो उनके सही होने का कोई प्रमाण होता था और न उनकी सच्चाई की जांच हो सकती थी। लेकिन आज अनेक नए तरीक़ों से जो है गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हो रहा है। परंपराओं और जो है सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन अन्य ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में होना चाहिए, यानी इसके लिए जो है हर एक चीज़ का जो है सही जांच परख के साथ जो है इतिहास का जो है सही रूपरेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि हम उदाहरण के लिए ले तो महाभारत जो है दो भाइयों की संतानों के बीच हुए संघर्ष की गाथा है, जो आप लोग भी जानते होंगे। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि इस महाकाव्य में वर्णित युद्ध सचमुच हुआ था या नहीं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध वास्तव में हुआ था, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार दूसरे स्रोतों से पुष्टि हुए बिना इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। मूल कथा जो है शायद सूतों द्वारा रची गई हो, जो आमतौर पर जो है क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी जो है विजय तथा अन्य उपलब्धियों की प्रशंसा में काव्य रचाकर जो है सुनाते थे। ये रचनाएं जो होती थी उस समय मौखिक रूप से ही प्रसारित होती थी और मानव स्मृति का एक हिस्सा बनकर सुरक्षित बची रहती थी। देखिए दोस्तों, ये बात कई मानने में सही तथ्य भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से हमने अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से सुना है कहानी जिसकी वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से हम सुनते ही रहते हैं। वो अपनी मम्मी को बताते हैं, वो उसे चलते चलते जो है हम अपने पूर्वजों तक पहुंचाते हैं, और कभी कभी यही रूप जो है एक कथा का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन फिर भी है जो यहाँ पर कहते हैं जब तक तथ्य न हो तब तक इस बात का जो है प्रमाण देना संभव नहीं है। तो यही बात जो है इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ बनाता है। The most important topic here literacy source. There is the most important and the first year religious literature. There is the religious literature is the most important for evidence of the history. The most ancient Indian text contain of religious themes, and these are known as the Veds. Ved is the most important here. They are assigned to C is a 1500 to the 500 BC backward century, and their Vedas are four in a number. The Rig Veda mainly consists of prayer. The Rig Veda here is the only for the prayers. The other three is a Samya, Azur and Earth contain a prayer, rituals, magic and the mythological story. There is a most important here. Their content prayer and the restricted is a magic and mythological story. The Upanishad is a content to the is a philosophical is a discussion on the Atma and Paramatma. There is a Upanishad here is the most important. There is a discuss here Atma and Paramatma, and they are also referred to be Vedant. There is a Vedant is very important here. The two epics is a Ramayana and Mahabharata is a seem to has been to finally is a complied by their AD 400 of the two. The Mahabharata is attributed to the cells Vyasa, and it is original to consist of the 8,800 verses, and there is a called Jaya Gita or the song dealing with the victory. Jaya Gita are there or declined with the victory, and this later go to expand it to the 40,000 verses and the come to known as the Bharata, because they are containing to a story of the is descendant of one of the earliest Vedic tribes is called Bharata. A further expanded version of 1,00,000 verses was the named Mahabharata. The first fall is the 24,000 verses here, but today is a 1,00,000 verses was named to the Mahabharata. And similarly, the Ramayana of the Valmiki originally is a consist of 600 verses and then 12,000 verses and the finally expanded to 24,000 verses. There is a most important here. In the post-Vedic period after the BC of 600, we have recorded a large number of literature on the moral value is called Sutra. Grand public is clarified to be performed by the rules and recorded in a
sutra and will the domestical rituals is connected with the birth, naming, square, thread and ceremony is marriage, furnace, etc. The prescribed there is a Gri Sutras is their literature was a complete between to the BC is a 600 to the 300 BC here. There is the most important. The religious is a book of the Jains and Buddhists refer to the historical person and incidents is connected with their is a respective religions. And the earliest Buddhist text is where to the written in a Pali. The Pali is the written by the Buddhist in their inscription and they are called Tripatak. There is a call to the Tripatak and three basket. V is a Sutpatak, Vinay Patak and Abhidham Patak. There is the most important here, three Patak. And of the most important non-religious Buddhist literature are there is a Jataks. There is a content of story of the preview birth of the Buddha. It is the belief that before he was actually born in the Gautam. The Buddha is a passed through over to 550 is the births. The each birth story is called to the Jatak. Jatak is called to the 550 birth here called Jatak. This story through there is available is a light on the social and economical condition of the period between the 5th and 2nd century BC. The Jaina is a text where written in a Prakriti and there is a eventually is a complete in the 6th century AD is the Valavi in a Gujarat. Is a Valavi in Gujarat there is called Angas. Angas and contain to the philosophical concept of the Jains. यहाँ पर देखा जाए तो हम साहित्यिक स्रोतों के रूप में जो है इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास के किस किस स्रोतों से जो है इतिहास की सही प्रमाण हमें मिलेगा और भारत का इतिहास समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि जो है भारत का इतिहास क्या है और ये सारी बातें जो है कई मान्य यूपीएससी एग्ज़ाम के जो बच्चे की तैयारी करने का सोच रखे हैं अगर ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं सबसे पहले हमारे समक्ष आता है धार्मिक साहित्य। कहते हैं भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से संबंध रही है और इन्हें वेद कहा गया है और इसका जो है रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। वेदों की जो है चार है, आपको पता है वेद हमारे चार होते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से जो है प्रार्थनाएं ही हैं। अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें प्रार्थना ही है, प्रेयर ही है और अन्य तीन वेद में जो है समवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद में जो है प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र और पुराने कथाएं हैं। तो ये सारे वेदों में जो है हमें हर तरह के अनुष्ठान, मंत्र और पुराण कथाएं जो है बहुत मात्रा में उपलब्ध है। उपनिषदों को बात करें तो ये आत्मा परमात्मा के संबंधों को जो है दार्शनिक विभेदन करता है, यानी उपनिषद जो है आत्मा और परमात्मा के जो है विषय में बताता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, इसे हम वेदांत भी कहते हैं। यदि हम बात करें रामायण की और महाभारत की तो कहते हैं हमारे सबसे बड़ा महाकाव्य ये दो ही है, रामायण और महाभारत। इन दो महाकाव्य का संकलन जो है अनुमानत ईस्वी सन 400 तक जाकर पूरा हुआ होगा। इसमें से महाभारत के रचनाकार जो है व्यास मुनि है माने जाते हैं और व्यास मुनि ने ही इसको बनाया भी था, यानी उन्होंने रचना पूरा किया था। इसमें जो है देखा जाए तो 8800 श्लोक थे और इसका नाम तो था जय गीत था अथवा इसे विजय गान भी कहते थे। आगे चलकर इसकी विस्तार हुई और इसमें जो है 24,000 श्लोकों में हो गया। इसे जो है भारत कहा जाने लग गया क्योंकि इसमें प्राचीनतम वेद वंशों में एक जो है राज्य वंश के उत्तराधिकारियों की गाथाएं थी और इसके और जो विस्तृत किया गया संस्करण तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक में बदल गया। देखिए कहते हैं ये धीरे धीरे कितना बदल गया। पहले 8,800 श्लोक हुआ करती थी, फिर जाके जो है जब भारत इसका नाम पड़ा तो उस समय 24,000 श्लोक थी, लेकिन अगर देखा जाए अभी के समय में तो 1,00,000 से ऊपर श्लोक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें व्यास मुनि की तो जो उस समय रचना उन्होंने किया था तो सिर्फ 8,800 श्लोक ही थी, जिसे जय गीत या विजय गान के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज के समय महाभारत जो है 1,00,000 से अधिक श्लोकों के साथ जो है आज विद्यमान है। इसी प्रकार अगर हम मूल्यतः वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना किया था उस समय जो श्लोकों की संख्या थी वो सिर्फ 6,000 श्लोक थी। लेकिन मगर आगे चल के जो है इसका विस्तार हुआ
और कहते हैं पहले 12,000 तक पहुंची और आज जो है ये 24,000 श्लोकों में हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत धीरे धीरे बदलाव हुई है और बहुत सी चीज़ों को जो है बदल के जो है एक नया रूप दिया गया है। तो इतिहास इस बात के लिए जो है साक्षी है कि ये समय समय पर जो है बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक में वेदों के वाले जो है काल जो है 600 ईस्वी के बाद हमें जो है अनुष्ठान संबंधी ढेर सारा जो है धार्मिक साहित्य मिलते हैं, जिसे हम सूत्र कहते हैं। सूत्र में जो है हमारे सभी तरह के धार्मिक साहित्य के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है उसमें बताई गई है। राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के जो है विद्वान जो है स्त्रोत्र सूत्र में मिलते हैं, जबकि जन्म नामकरण और यशोवर्ती विवाह अष्टमी आदि संस्कार जुड़े घरेलू अनुष्ठानों का विद्वान जो है ग्रह सूत्र से मिलते हैं। गृह सूत्र से ये सारी चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। इस साहित्य का संकलन जो है लगभग 600 से लेकर 300 ईस्वी के बीच मानी जा रही है। अगर देखा जाए जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ के रूप में, तो इन धर्मों से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व और जो है घटनाओं का जो है विवरण देते हैं। आरंभिक बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी गई थी, उन्हें जो है त्रिपिटक यानी 3 पिटारे कहा जाता था, जिसका जो नाम आपको पता ही होगा, सुत्त पिटक जो था, विनयम पिटक था, अभिधम पिटक था। ये तीनों जो नाम है त्रिपिटक के नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। सुत्त पिटक था, विनयम पिटक था और अभिधम पिटक था। धर्मों के इतर बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जातकों का रहा है, यानी जातकों का जो है बौद्ध धर्म में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें गौतम बुद्ध के पुण्य जन्मों की कहानियाँ हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध के जो है 5,500 जन्म और भी हुए थे, और इसका जो है विस्तार पूर्वक जो है वर्णन है वो जातक में वर्णन है। यानी जातक में उनके पूरे जीवन में जितने भी उन्होंने जन्म लिया है, 550 जो है उन्होंने जन्म लिया, उसकी सारी व्याख्या जो है विख्यात इसमें दी गई है। हर जन्म की कहानी एक जातक कहलाती है। ठीक है, ये कहानियाँ ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी के बीच के काल के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश भी डालती है। जैन पाठकों की रचना जो है प्राकृतिक भाषा में हुई थी और आगे चलकर इसका संकलन ईस्वी की 36वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। यानी इसका जो है संकलन कहाँ हुआ था? वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था। किसका? तो जो ये हमारा प्राकृतिक भाषा में हुई थी, किसका? जैन पाठकों का। तो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब पढ़ोगे अच्छे से तब ना आपको समझ में आएगा क्या चीज़ कहाँ पूछी गई है। इन्हें अंक कहा जाता है और इसमें जैन की दार्शनिक अवधारणाएं भी मिलती है। यानी इन सबको क्या कहा गया है? अंक का जो है नाम दिया गया है।